Namaskaram and a very good evening, all of you. Please confirm if we are live. Good evening. Hi, Vidushi. Hi, Aman. Hi, Sayuri. Hello, Jyoti. Hi, Shivanshu, Devyani, Vikram, Ritika, Govind. Hello, Ishika. I guess we are live. Hello, Sonal. क्या हाल चाल है? Hi, Shipra, Sonia, Neelam, Vishesh. Namaste. Good evening, Annapurna. Okay, let's begin. Welcome to episode number 22 of Eclectic Reading. And any guesses on what are we going to talk about today? I would like to hear from you. Those of you who are new to me or the channel, my name is Karishma and I'm your coach for verbal ability and reading comprehension. And I bring to you this series known as Eclectic Reading, which is a super bestseller because we are trying to do what everybody wants to do. That is, to comprehend passages better. So this series is an attempt to solve some general questions based on articles sprinkled throughout the internet from various genres. So in every episode, we pick up a new article of a different category, of a different style, of a different difficulty level, and then we discuss it at length, understand the concept better, and of course, if there is time enough, we do a couple of general questions from all of them. So today's episode 22, and what are we going to talk about? Mindful eating versus binge eating, burgers. गर्मी के बारे में रोना बंद कर दो, जून चल रहा है, जनवरी नहीं. Unhealthy food, finding something to eat while working, today's lifestyle and junk food, eating habits. Okay, so today we are going to talk about whether we should eat fast or whether we should eat slow. What do you think is the general norm? What is the norm around eating? What should be the pace while we are eating? Should we eat fast or should we eat slow? While you ponder upon that, I'll make a few announcements. There are unbelievable discounts going on at the Great Unacademy Price Plunge, where you are getting a 6-month subscription along with a 2-month subscription free only for 20,900 rupees, and a 6-month plus free 2-month subscription on Iconic for 30,400 rupees. Both of these plans are fantastic for 2023. These are 6 months plus 2 months plans. They will cover your cat as well as your roommates. You can opt for Plus or you can opt for Iconic. The Crack the Code batch starts on June 8th. You can join this batch. This offer is valid only till the 10th of June. And the discount code that you might apply if you want to get discounts is Karishma Live. So Karishma Live will get you a 2-month extension on a 6-month subscription, and it will help you save up to 15,000 bucks. 32 times chew करना चाहिए. तुम लोग कितना करते हो? 2 या 3? Congratulations to all the OMET and CAT toppers of 2022. The results are out. The students are already off to their colleges and sending us lots of emails. I hope that you will be there next year as well and contacting us from there as well. The CAT SAT, or the CAT Scholarship Admission Test, is happening on the 18th of June in 2 slots, 12 p.m. and 5 p.m. There are 30 questions in 60 minutes, and you can get 100% scholarship. You can get mentorship from CAT gurus, and it's a great chance to get your profile analyzed by them. And of course, there are Amazon vouchers up to 5k rupees. So please participate in the CAT SAT, which is on the 18th of June, in any of the slots that choose you. We will also analyze the test the same day. हमारा बस चले तो डायरेक्ट गले से पेट में डाल लें. ओके, ऑल राइट. Anyway, June 8th, Crack the Cat code starts, and this is a comprehensive batch for 2023. And if you are a person who is starting now, I think you should begin very quickly. I am also a part of this batch, and these are the USPs of this batch. These are the features of the Plus and the Iconic subscription. If you are new, please pause the video and go through the same. Let's begin the article. For as long as I have been feeding myself, which for the record is several decades now, 3+ decades in my case, I have been feeding myself fast. I bite big. All the men out there, how many of you are in relationships and you've tried to feed your partner? So men will break big bites and women will have small bites. Similarly, if both of us are having a burger and I'll ask you to taste mine and I want to taste yours, you will taste half my burger in one bite if you're a man, and I'll be able to have just a tiny morsel from your burger if I'm a woman.
Men usually have bigger bites, bigger jaws. But anyway, the author says that I bite big in rapid succession, jaldi jaldi. My chews are hasty, so she doesn't chew really well. She does it very hastily, and there are very few chews. Yeah, तो ज़्यादा चबाते नहीं हैं. In the time it takes others to get through a third of their meal, mine is already gone. तो आप अपना 1/3 खाना खाते हैं, एक रोटी खाएंगे, उतनी देर में 3 रोटी खा चुकी होती है. You could reasonably call my approach to eating pneumatic, reminiscent. Just a second please, there is a phone, I need to disconnect it, otherwise I won't be able to read your messages. Okay, so then you can call my my approach to eating pneumatic. So when we say pneumatic is basically something which is operated like a machine by a gas or a liquid under pressure. तो ऐसे मशीन के जैसे फटाफट खाती है. You could reasonably call my approach to eating pneumatic reminiscent of a suction feeding fish or a Roomba run amok. तो आपको मेरे को खाता हुआ देखकर ऐसे याद आएगी या तो एक सक्शन फीडिंग फिश की जो खट खाना खा जाती है, या फिर कोई रूम्बा विच इज़ अ स्पीशी अगेन रन अमॉक जो एकदम भाग रहा हो इधर उधर. तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं भागने के लिए तैयार हूँ. ठीक है. ओके सोनल. वेयर माई वैक्यूमिंग माउथ गोज़ एडवाइस टू कॉन्स्ट्रेन इट फॉलोज. जहाँ जहाँ मेरा ये वैक्यूम करने वाला मुँह जाता है जो सब कुछ खाली कर देता है, वहाँ वहाँ लोग मुझे इसे कंट्रोल करने की सलाह देते हैं. इंटरनेट राइटर्स हैव डिक्लेयर्ड स्लोनेस अकिन टू स्लिमनेस. जो इंटरनेट पे कहते हैं कि धीरे खाने वाले लोग पतले होते हैं और जल्दी खाने वाले लोग मोटे होते हैं. सेल्फ डिस्क्राइब्ड फूडीज लेमेंट इज मोर्न दैट देयर इज नथिंग वर्स दैन वॉचिंग अ गेस्ट इनहेल अ पेन्सटेकिंगली प्रिपेयर्ड मील. तो बहुत सारे फूडीज़ हैं इंटरनेट पे जो कहते हैं कि हमने घंटों लगकर दाल मखनी बटर चिकन बनाया था और हमारा गेस्ट आया और वो यूँ ही इनहेल करके सब चट कर गया. तो बनाने में तो लगे 4 घंटे, खाने में उसको लगे 4 मिनट. तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है. और लोग ये भी बोलते हैं धीरे खाने वाले लोग पतले होते हैं. देर आर इवन चिल्ड्रंस सॉन्ग्स दैट वार्न अगेंस्ट द पेरिल्स ऑफ ईटिंग टू फास्ट. ऐसे गाने हैं, अभी पोएम्स बन गई हैं जो बच्चों को बताती है कि देखो जल्दी जल्दी खाने से भाऊ आ जाता है या फिर कुछ नुकसान हो जाता है, और उनको गिनवाता है कि देखो इट्स नॉट गुड टू ईट टू फास्ट. My family and friends, most of whom have long since learned to avoid splitting entrees with me, often comment on my speed. तो कहता है मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब ने इनकार कर दिया है कि वो मेरे साथ स्टार्टर्स को, एपेटाइजर्स को बांटेंगे नहीं. ऑन्ट्रेज इज़ बेसिकली अ फ्रेंच टर्म फॉर अ स्टार्टर. तो वो लोग मेरे साथ स्टार्टर शेयर करने को मना कर देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इसके बिग बाइट्स हैं. आई थिंक शी इज़ अ वुमन, हर नेम इज़ कैथरीन, बट एनी वे. सो सब ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ खाना शेयर नहीं करेंगे, और सबके सब उसकी स्पीड पे कमेंट करते हैं. स्लो डाउन, वन ऑफ माई आंट्स फ्रेटेड एट अ रीसेंट मील. तो मेरी एक आंट ने जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया. आंटियों का तो काम ही चिल्लाना होता है आफ्टर ऑल. सो उन्होंने बोला बेबी स्लो डाउन, ईट प्रॉपरली, डोंट यू नो दैट ईटिंग फास्ट इज़ बैड फॉर यू. सो आंटी इज़ ऑलरेडी चिल्लाइंग कि भैया धीरे खाओ, मतलब तुमको नहीं पता कि इतना जल्दी जल्दी खाना अच्छा नहीं होता है. You the guest they're talking about? Okay, so I am also guilty as charged. I also eat fast. My bites are not big, but I think I eat at a decent speed. But when I see that people around me are eating slow, then I think that I eat fast. When I was offline last year, we used to have lunch at work, and my lunch used to get finished very quickly. I thought I was eating less. They thought I was eating fast. I don't know which was the truth. But anyway, to each his own. I do, or at least I have heard. तो मैंने सुना भी है और मैं जानती हूँ कि जल्दी खाना अच्छा नहीं होता है. ओवर द डेकेड्स अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टडीज़ हैव फाउंड दैट people who eat faster are more likely to consume more calories and carry more weight. तो मैंने बहुत सारी स्टडीज़ में पढ़ा है कि जो जल्दी जल्दी खाता है वो ज़्यादा कैलोरीज खा जाता है और वो ज़्यादा वेट भी कैरी करता है. दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़. और ऐसे लोगों को हाई BP और डायबिटीज़ की शिकायत भी रहती है. The data are very robust. Robust is strong. ठीक है. Can somebody tell me why data has been treated as plural here? जल्दी से बता दो, टॉफ़ी खिलाऊंगी. उसको तुम च्यू करके धीरे धीरे खाना. Says Kathleen Melanson of the University of Rhode Island, the evidence holds up when researchers look across geographies, genders and age. The findings have even prompted researchers to conduct eating speed interventions and design device वाइब्रेटिंग फोक्स. मतलब वैसे ही वाइब्रेटर्स की कमी है दुनिया में, जो हम और वाइब्रेटिंग फोक्स लेकर आ रहे हैं. एंड वेरेबल टेक जैसे घड़ी होती है हमारी, दैट दे होप विल स्लो डाइनस डाउन, जो आपको याद दिलाएगी कि डूड धीरे खाओ. तो आपकी घड़ी आपको ये भी बताएगी कि मुंह कम चलाया कर, धीरे चलाया कर.
और कोई वाइब्रेटिंग फोक्स भी आ जाएंगे, आई कैन ओनली इमेजिन वॉट वुड दैट साउंड लाइक, वॉट वुड दैट feel like. I don't want to think about it. My mind is wavering in all sorts of directions. But anyway, तो फाइंडिंग्स ने बोला कि भैया अभी रिसर्चर्स ने बोला है कि अभी हमको इंटरवीन करना पड़ेगा, लोग बहुत तेज़ तेज़ खाना खा रहे हैं, हमको उनको धीरे करवाना पड़ेगा. तो यहाँ पर फास्टर और हार्डर नहीं चलता है. सॉरी सर, ज़्यादा हो गया. बट द वाइड स्प्रेड मंत्र ऑफ गो स्लोअर probably isn't as definitive or universal as it at first seems. तो वो बोलते हैं कि ये जो गो स्लोअर वाला मंत्र है ना तो ये डेफिनेटिव है और ना ये यूनिवर्सल है. Fast eaters like me are not necessarily doomed basically going to die, okay, to metabolic misfortune. तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर कहर बरसने वाला है और हमारा मेटाबॉलिज्म सारा स्क्रूड अप है and we are going to die. Many of us can probably safely and happily keep hoovering our meals. हम में से काफ़ी सारे लोग आराम से safely happily ये खाना खा सकते हैं. Most studies examining eating speed rely on population level observations taken at single points in time rather than extended clinical trials that track people assigned to eat fast or slow. बहुत सारी studies हैं जो रिलाई करती हैं पॉपुलेशन लेवल ऑब्जर्वेशंस पे, यानी छोटे लेवल पर किया गया सर्वे जो कि सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लिए गए हैं. कोई एक्सटेंडेड क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं जो ट्रैक करते हैं कि देखो ये बंदा 10 साल से धीरे खा रहा था तो इसका क्या फ़ायदा है, और ये 10 साल से तेज़ खा रहा है तो इसका क्या फ़ायदा है, जिसे हम लॉन्जिट्यूडनल सर्वे कहते हैं. वो नहीं हुआ है. बस यही होते रहते हैं, एक्सटेंडेड क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं, ये पॉपुलेशन लेवल सर्वेज होते हैं. दे कैन स्पीक टू एसोसिएशंस बिटवीन पेस एंड सर्टन आस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ बट नॉट टू कॉज एन इफेक्ट. तो हम पेस और सर्टन आस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बीच में कॉजेशन नहीं दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी नहीं दिखती है. और सारे के सारे लोग अग्री भी नहीं करते हैं कि प्रोट्रैक्टेड ईटिंग यानी डिलेड ईटिंग, आराम आराम से खाना, कोई सेटिस्फैक्शन बूस्ट करता है या फिर लोगों को कम खाने पे मजबूर करता है. यूजुअल एडवाइस ये रहती है कि आप धीरे खाइए तो आप कम खाएंगे और आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. जब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा यू विल एंड अप ईटिंग लेस कैलोरीज एंड देयरफॉर स्लिमनेस इज इक्वल टू स्लोनेस. Even among experts there is no consensus about the benefits of eating slow. Experts में भी कोई consensus नहीं है कि धीरे खाने के क्या फ़ायदे हैं. Says Tani, a nutrition researcher at Universitat Rovira in Spain who has studied eating rates. ये सब important नहीं है डेटा हमारे लिए. As usual हम proper nouns को ignore करेंगे तब तक जब तक इस पर question नहीं आ जाता. The idea that eating too fast could raise certain health risks absolutely does make sense. The key, experts told me, is the potential mismatch between the rate at which we consume nutrients and the rate at which we perceive and process them. तो द आइडिया कि जल्दी जल्दी खाना हमारा हेल्थ रिस्क बढ़ा सकता है ये शायद सेंसिबल है, क्योंकि मिसमैच है कि एक की मिसमैच है बिटवीन द रेट एट विच वी कंज्यूम एंड द रेट एट विच वी प्रोसेस इट. तो एक होता है कि आप खाना खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और एक होता है कि आपकी बॉडी प्रोसेस कर रही है. तो प्रोसेस करने में हम च्यूइंग चलती है माउथ में, सॉलोइंग चलती है थ्रोट में, डिस्टेंशन चलता है स्टमक में, और फिर जाके ट्रांजिट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. फ्लड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विद अ टन ऑफ फूड एट वंस एंड दोज सिग्नल्स माइट स्ट्रगल टू कीप पेस. आप जल्दी खाना सारा का सारा अपने इंटेस्टाइन को दे देते हैं तो ये सिग्नल्स जो हैं ये मैच नहीं कर पाते हैं आपकी स्पीड, मेकिंग इट ईजियर टू वुल्फ डाउन मोर फूड. तो आप जल्दी वुल्फ के जैसे ज़्यादा खाना खा लेते हैं दैन द गट इज़ आस्किंग फॉर, जितनी की ज़रूरत भी नहीं थी. Fast eating may also inundate the blood with sugar. Inundate is basically flooding. Okay. So inundate is to flood the blood with sugar. तो sugar level जल्दी बढ़ जाता है. Risking insulin resistant, क्योंकि insulin resistance को कम कर देता है. And a common precursor to diabetes. और ये diabetes की निशानी है कि आप insulin resistance को नहीं handle कर पाते हैं, कम हो जाता है. A metabolism researcher in Japan says, the big asterisk here, asterisk means the terms and conditions applied, here is that a lot of these ideas are still theoretical. Author कहते हैं ये सारी बातें theoretical है. ऐसा एक pediatric endocrinologist का बोलना है जिसने की studying करी है eating pace की. Research that merely demonstrates an association between fast eating and higher food intake cannot prove that which observation led to the other. तो रिसर्च जो सिर्फ ये दिखाती है कि फास्ट ईटिंग के बीच में और हायर फूड इनटेक के बीच में कोई एसोसिएशन है, ये नहीं प्रूव कर पाती है कि वन थिंग इज़ लीडिंग टू द अदर. इट कुड बी दैट यू आर जनरली ईटिंग मोर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईटिंग फास्ट. तो हमें उनके बीच का कॉजल लिंक नहीं मिल रहा है. कॉज है नहीं, लेकिन हमने जितने लोगों ने CR का कोर्स करा है हमने फैलेसी ऑफ कॉजेशन पढ़ी थी कि हम घर से निकलते हैं और किसी ने हमें आवाज़ लगा दी पीछे से तो हम कहते हैं यार अब तूने मुझे टोक दिया.
तो मेरा दिन ख़राब जाएगा। और अब मेरा दिन वाकई में ख़राब जाता है तो हमको लगता है उसके टोकने की वजह से ख़राब गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप लगा रहे हैं वहाँ पे जहाँ है नहीं। तो यहाँ पर भी लोग फास्ट ईटिंग और हायर फूड इनटेक के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप लगाते हैं जहाँ की है नहीं। सम अदर फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस विच इज़ एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, या डाइट कॉम्पोजिशन कैन बी ड्राइविंग बोथ। हो सकता है आप स्ट्रेस में जल्दी भी खाते हैं और स्ट्रेस में ज़्यादा भी खाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जल्दी खाने की वजह से ज़्यादा खाते हैं। द गुड साइंस इज़ जस्ट कम्प्लीटली लैकिंग। तो अच्छा साइंस, अच्छा रिसर्च हमारे पास नहीं है। Scientists don't even have universal definitions of what slow or fast eating is और how to measure it. Scientists को ये भी नहीं पता कि क्या definition होनी चाहिए slow eating की, कितना speed slow है, कितना fast है, कितना chew per minute को हम fast कहेंगे, कितने chew per minute को हम slow कहेंगे, और उसको measure कैसे करें, बैठ के लोगों को देखें कि वो कितना chew कर रहे हैं. Studies over the years have used total meal time, chew speed, other metrics, but they all have their drawbacks. तो ये थोड़ा आप समझ रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप का स्टडी है. आप कैसे पता लगाइएगा, मील टाइम अलग है, मील काइंड अलग है, चूइंग स्पीड अलग है, दिन का समय अलग है, सबका शेड्यूल अलग है. आर्टिकल समटाइम्स पॉइंट टू अ कट ऑफ ऑफ 20 minutes पर मील, क्लेमिंग दैट इज़ हाउ लॉन्ग द बॉडी टेक्स टू फील फुल. तो अक्सर लोग बोलते हैं 20 मिनट लगने चाहिए खाना खाने में, तो बॉडी को समझ आने में इतना टाइम लग जाता है कि अब आपका पेट भर गया है. बट मैथ्यू, हु इज़ अ न्यूट्रिशनल न्यूरो साइंटिस्ट, क्रिटिसाइज दैट एज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन. ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि 20 मिनट लगने ही चाहिए. सेटिस्फैक्शन सिग्नल स्टार्ट ट्रिकलिंग इनटू द ब्रेन ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन वी ईट. 20 मिनट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. और फुलनेस थ्रेशोल्ड वैरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस. हर बंदे का फुलनेस का थ्रेशोल्ड सेम नहीं रहता है. सब लोग 20 मिनट में नहीं फुल फील करते हैं. कुछ लोग खाते ही फुल फील करने लगते हैं, कुछ लोग देर तक फुल नहीं फील करते हैं. स्टडीज़ दैट आस्क वॉलंटियर्स टू रेट देयर ओन स्पीड्स हैव इशूज़. अब ऐसे स्टडीज़ जो वॉलंटियर्स को बोलते हैं कि तुम अपनी स्पीड खुद देखो, तो पीपल कंपेयर देमसेल्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. आप मुझे बोलेंगे आप अपने आप को मेजर करें, तो मैं कहूँगी लोग तो यही बोलते हैं कि मैं तेज़ खाती हूँ, लेकिन ये जनरली लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो इसका मतलब सैम्पल जो है हमारा क्या फ्लॉ हो गया यहाँ पर, क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़ा है. द सैम्पल इज़ नॉट अनबायस्ड, द सैम्पल इज़ नॉट रैंडम, द सैम्पल इज़ नॉट लार्ज इनफ. ईटिंग रेट कैन ऑल्सो फ्लक्चुएट ओवर अ लाइफ टाइम. कभी मैं तेज़ खाती थी, कभी जल्दी खाती थी. स्ट्रेस में तेज़ खाती हूँ, स्ट्रेस में ज़्यादा भी खाती हूँ. कभी कभी एक दिन में भी स्पीड बदल जाती है, क्योंकि हंगर पे डिपेंड करता है. पेट भरा हुआ है तो आदमी धीरे खाता है. स्ट्रेस पे डिपेंड करता है. तुम लोगों की बातें सुन के ज़्यादा खाने का मन करता है, क्योंकि लगता है कहीं तो गुस्सा निकले. टाइम कॉन्स्टेंट्स, तो अगर टाइम पे रहना है तो कभी कभी जल्दी खाना पड़ता है. साथ में जो बैठे हैं उनको देखकर भी हमारी स्पीड बदल जाती है. सब लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो हम भी थोड़ा पेसअप कर लेते हैं. सब धीरे खा रहे हैं तो हम कहते हैं अरे यार थोड़ा आराम से. यहाँ तक कि पीछे चलने वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डिसाइड करता है कि हम किस स्पीड पे खा रहे हैं. पता चला वो उसकी बीट्स को मैच करने के लिए जल्दी या तेज़ खा रहे हैं. इन एन एवोल्यूशनरी सेंस ऑल ऑफ अस ह्यूमंस ईट एब्सर्डली फास्ट. अगर आप एवोल्यूशन के सेंस में देखोगे तो सारे ह्यूमंस ही जल्दी खाते हैं. हमारा मैग्नीट्यूड क्विकर है हमारे प्राइमेट रिलेटिव से. तो अगर आप हमको कंपेयर करेंगे एप्स, गोरिल्लाज, मंकीज, बबून से, तो हम उनसे तेज़ खाते हैं. जस्ट ओवर 1 hour a day कंपेयर्ड विद दियर ऑलमोस्ट 12. हम अगर अपनी स्पीड देखेंगे तो जितना वो 12 घंटे में खाते हैं उतना हम एक में खा लेते हैं. एडम का ये कहना है, जो कि एक फीडिंग इकोलॉजिस्ट है इंग्लैंड में. दैट्स थैंक्स लार्जली टू हाउ वी ट्रीट आवर फूड. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपना फूड ट्रीट करते हैं. कैसे? पहले तो हमारा फूड पका हुआ होता है. दूसरा, हमारे पास नाइफ्स जैसे टूल्स हैं जिससे आप जल्दी खा सकते हैं. इसके अलावा हम केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं जो कि हमारे खाने को सॉफन करती है. नेचर के रॉ इंग्रेडिएंट्स, तो अभी एप्पल खाने के बजाय हम एप्पल जूस पी लेते हैं या एप्पल को बेक कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको खाना ईजी रहता है. ये सब हमारे को पीछा छुड़वाता है प्रिजन ऑफ मैस्टिकेशन से. कैन समबडी प्लीज गेस द मीनिंग ऑफ मैस्टिकेशन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड क्विकली टेल मी विदाउट रेफरिंग टू गूगल. प्रिजन मतलब जेल, तो हमारा मैस्टिकेशन के जेल से पीछा छूट जाता है. मॉडर्न वेस्टर्न डायट्स हैव टेकन दैट पैटर्न टू एन एक्सट्रीम. आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव मी एन आंसर टू मैस्टिकेशन वेरी क्विकली. वेरी गुड. मैस्टिकेशन सिंपली मीन्स च्यूइंग. ठीक है, तो डिक्शनरी की हर बार ज़रूरत नहीं होती है, पढ़कर भी मीनिंग निकाला जा सकता है. तो हमको हमेशा च्यू करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर चॉक फुल यानी ओवरफ्लोइंग. देयर इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स सो सॉफ्ट एंड शुगर एंड फैट लेडन. जितनी चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में चीज़ केक टाइप की, वो इतनी सॉफ्ट रहती है, इतनी शुगर और फैट से भरी हुई रहती हैं कि उनको आप ऐसे ही निगल सकते हो. विथ नैरी अ च्यू. नैरी का मतलब है नॉट. आर के एक अंग्रेजी है. जब चबाने की ज़रूरत ही नहीं. चावल फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग चावल जल्दी खाते हैं. हमें से कितने लोग चावल जल्दी जल्दी खाते हैं, और रोटी को तो चबाना पड़ता है. तो चावल फॉर एग्जाम्पल चावल में इतना स्टार्च और शुगर रहता है कि हम उसको खट खट खा लेते हैं और चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. खिचड़ी हो गई फॉर एग्जाम्पल.
विच कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट ड्राइव फास्टर ईटिंग एंड क्रोनिक मेटाबॉलिक इल्स। और इसीलिए शायद हम जल्दी खाते हैं और शायद थोड़े क्रोनिक मेटाबॉलिज्म जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे एसोसिएटेड है। इन प्लेंटी ऑफ सर्कमस्टांसिस स्लोइंग डाउन विल कम विद पर्क्स। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसिस में स्लो डाउन करना अपने पर्क्स और इंसेंटिव्स के साथ आता है। सी सो मैनी ऑफ यू, नॉट लीस्ट बिकॉज इट कुड कर्ब द रिस्क ऑफ चोकिंग और एक्सेस गैस। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि चोक नहीं करोगे तुम खुद को क्योंकि तुम धीरे खा रहे हो, या तुम्हें गैस नहीं होगी क्योंकि तुम धीरे खा रहे हो। इट कुड ऑल्सो टेम्पर ब्लड शुगर स्पाइक्स इन पीपल विद डाइट्स हैवी इन प्रोसेस फूड। अगर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हो तो उससे जो तुरंत ब्लड शुगर स्पाइक मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। Which whiz through the digestive tract through the healthier move, though the healthier move would probably be eating fewer of those foods। हालांकि हेल्दियर मूव ये है कि आप ऐसा खाना ही ना खाएं जो कि ब्लड शुगर से, जो कि शुगर से लेडन है या फिर जो प्रोसेस्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं तो एटलीस्ट धीरे तो खाइए। तो जब धीरे खाएंगे तो कम से कम ब्लड शुगर तुरंत स्पाइक नहीं होगी, तो कुछ तो फ़ायदा होगा। Some studies focused on people with high BMI, including balancers, have shown that eating slower can aid weight loss। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया जितना खाना खा रहे हो उसका आधा खाओ और जितने समय में खा रहे हो उसको समय को डबल कर दो, तो अपने आप भूख कम लगेगी। लेकिन इसके रिजल्ट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसी किसी के लिए एप्लीकेबल हैं, किसी किसी के लिए नहीं है। द मेन इम्पैक्ट ऑफ लेजरली ईटिंग में नॉट बी इवन अबाउट च्यूइंग रेट्स ऑफ बाइट साइज पर से, बट अबाउट हेल्पिंग पीपल ईट मोर माइंडफुल। कहते हैं कि शायद लेजरली ईटिंग का असली मकसद माइंडफुल ईटिंग कराना है। हम में से ज़्यादातर लोग जब खाते हैं तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मुझे याद एक स्टूडेंट थी आकांक्षा, उसने क्लास में बोला था जब हम माइंडफुल ईटिंग डिस्कस कर रहे थे, ऑफलाइन में पढ़ाती थी तब, कहती है कि मैम बिना कुछ देखे कैसे खाना खा सकते हैं, कुछ तो चाहिए ना, टीवी, यूट्यूब, सीरीज, समथिंग हैज़ टू बी देयर। मैं ऐसे खाना नहीं खा सकती। पीपल नीड डिस्ट्रैक्शन टू ईट। Ideally in Indian culture, you're supposed to eat with your hands and your fingers are supposed to tell you the temperature of the food. They add to the taste of the food. You're supposed to sit in Sukhasan. You're supposed to pray a little before you start eating. And then of course there are no distractions, no gadgets, nothing. And you ideally eat at least one meal with your family. कोई distractions नहीं होते हैं। आजकल उल्टा हो गया है। People want to be distracted while they are eating because उनको खाने से मतलब ही नहीं है। उनको सारा का सारा ध्यान एंटरटेनमेंट में चाहिए। एंटरटेनमेंट होता रहे, यूट्यूब चलता रहे, फ़ोन चलता रहे, टेक्स्ट करते रहेंगे और एक हाथ से खाना खाते रहेंगे, तो खाने में ध्यान कहाँ है। तो आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं एंड वी आर मिसिंग आउट ऑन आवर हंगर एंड सेफ्टी क्यूज़। इसलिए आपको जितना खाना दिया जाता है, जितना अवेलेबल होता है आप उतना खा लेते हैं। आप अंदर से आने वाली वो जो आवाज़ है, सटाइटी क्यू जो आती है कि बस कर, वो आप मिस कर जाते हैं एंड यू एंड अप ईटिंग मोर। In countries such as the US, people also have to wrestle with the immense pressure to be done with lunch really fast। ये सबके सब डॉगी हैं। ऐसा सिर्फ US में नहीं होता है, इंडिया वालों के पास भी बहुत प्रेशर है। हमको भी जल्दी जल्दी लंच करने को बोला जाता है, ऑफिस में काम होता है। बट एनीवे US वालों को लगता है कि सिर्फ इन्हीं के पास टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है भैया। तो हमको भी बोला जाता है जल्दी जल्दी लंच करो, ऑफिस में उतना टाइम नहीं मिलता है। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई इसके चक्कर में भी लोग जल्दी खाते हैं। कपल दैट विद द फास्ट फूड्स वी टेंड टू ईच फॉर, उसके बाद हमारे को बर्गर ग्रैब करने को मिल जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अच्छा फील नहीं करते हैं खाना खा के। क्यों? क्योंकि हमने खाना खाने पे ध्यान ही नहीं दिया। जब तक आपने चाय को, खाने को इन्जॉय नहीं किया है, उसके एक एक बाइट को सेवर नहीं किया है, वो सारे जूसेस अपने माउथ में इन्जॉय नहीं करे हैं, तो आपको क्या ही खाने का मज़ा आएगा। तो जब तक आपने वो नहीं किया, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। ठीक है, द पॉइंट हियर इजंट टू डीमोनाइज स्लो ईटिंग। वो कहता है मैं स्लो ईटिंग को डीमोनाइज नहीं कर रहा हूँ। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इट इज़ अ प्रिटी हेल्थफुल थिंग टू डू। आप ओवरऑल देखेंगे तो बढ़िया बात है, धीरे धीरे खाना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि ईट स्लो शुड बी अ ब्लैंकेट कमांड। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको बोलेंगे ईट स्लो और ये एक ब्लैंकेट कमांड है जो सबके लिए काम करेगी। फॉर पीपल ऑलरेडी ईटिंग अ हाई फाइबर फूड विच द बॉडी नेचुरली प्रोसेसेस प्लॉडिंगली, यानी धीरे धीरे, रॉबर्ट्स डजंट थिंक दैट स्लगिश च्यूइंग हैज़ मच टू ऐड। आपकी बॉडी पहले ही फाइबर को धीरे पचाती है, आप ज़्यादा जल्दी करके उसको पचा नहीं सकते। अब आप ऐसा व्यक्ति जो फाइबर शाइबर सब खा रहा है उसको आप बोलोगे और धीरे खाओ, तो उसकी लाइफ में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी डाइट पहले ही सॉर्टेड है। द एक्सटॉलिंग ऑफ स्लो ईटिंग इज़ एट बेस्ट अ हाफ ट्रूथ दैट इज़ बिकम ईजी टू एक्सप्लॉइट। आई डू फील सेल्फ कॉन्शियस व्हेन आई एम द फर्स्ट पर्सन एट द टेबल टू फिनिश बाय अ माइल एंड आई डोंट एन्जॉय द स्टेयर्स एंड द कॉमेंट्स अबाउट माई बिग एपेटाइट। तो इसको अब सेल्फ कॉन्शियस फील होता है और इसको अच्छा नहीं लगता कि भैया इसका खाना सबसे पहले ख़त्म हो गया और वो भी इतने कम टाइम में। और उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, सब लोग उसको घूरते हैं और सब लोग कहते हैं इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा खा लिया, तुम्हारी तो एपेटाइट भी ज़्यादा है। सर्टन सुपर स्लो ईटर्स माइट गेट टीज्ड फॉर मेकिंग अदर्स वेट। और सुपर स्लो ईटर्स को भी ताने मिलते हैं क्योंकि वो दूसरों को वेट करवाते हैं। बट दे आर नॉट चेस्टाइज्ड यानी स्कोल्डेड फॉर रूइनिंग देयर हेल्थ। लेकिन उनको कोई ये नहीं बोलता कि अरे यार तुम जो धीरे खा रहे हो ना वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा है। हमको तो ये भी सुनने को मिलता है कि तुम धीरे खा रहे हो तो तुम जल्दी खा रहे हो तो तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा है।
When I asked experts if it was harmful to eat too slowly, several of them told me that they had never considered it. तो बहुत सारे जब जब इसने एक्सपर्ट्स को बोला कि क्या भैया मैं धीरे खाऊं या तेज़ खाऊं, तो बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे एक बात बता दो। तो उन्होंने बोला कि यार धीरे खाने से क्या हार्म होता है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। हमने कभी कंसिडर ही नहीं करा कि धीरे खाने का कोई नुकसान हो सकता है क्या, बट प्रॉबेबली द आंसर इज़ नो, कि धीरे खाने का कोई नुकसान नहीं, जल्दी खाने के नुकसान हो सकते हैं। स्टिल फॉर द मोस्ट पार्ट आई एम हैप्पी टू बी दी उसेन बोल्ट ऑफ च्यूइंग। वो कहती है मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता, अपन च्यूइंग की दुनिया के उसेन बोल्ट है। माई हॉट फूड्स स्टे हॉट, गर्म खाना गर्म खाती है, एंड माई कोल्ड फूड्स स्टे कोल्ड, ठंडा खाना ठंडा खाती है। तो वो ठंडा रखे रखे गर्म नहीं होने देती और गर्म को रखे रखे ठंडा नहीं होने देती। आई हैव इंटरमिटेंटली यानी हियर एंड देन विद ब्रेक्स ओके ट्राइड ईटिंग स्लो ओवर द ईयर्स, डिप्लॉइंग सम ऑफ द यूजुअल ट्रिक्स। तो कहती है मैंने कई बार धीरे खाने की कोशिश करी और मैंने अपने बर्तन छोटे कर लिए, अपने बाइट्स छोटे कर लिए, फूड्स जैसे क्रंची बाइट्स वाले फ्रूट्स लिए जिनको थोड़ा चबाना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी कोशिश करी कि मैं काउंटिंग करूँ अपने च्यूज़ की और धीरे धीरे खाऊँ। द बिगेस्ट डिफरेंस आई फेल्ट वॉज नॉट फुलनेस और सेटिस्फैक्शन। मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ना मेरे को ज़िंदगी में कोई फुलनेस का अनुभव हुआ। इनफैक्ट मुझे गुस्सा आता था और नफरत होती थी उस मशी फूड से जो मेरे माउथ में पड़ा रहता है। तो जब आप ज़्यादा च्यू करते हैं तो फूड मशी हो जाता है। जो स्लो ईटर्स रहते हैं वो मशी फूड डाइजेस्ट करते हैं, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम काम करना पड़ता है, उनके दांत ज़्यादा काम कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को जल्दी खाने की आदत होती है वो फूड को वैसे ही क्रिस्पी क्रंची एंड देन दे स्वॉलो इट, वो मशी नहीं होता है। ज़्यादा खाना चबाने से वो मशी हो जाता है, तो ऑथर को वो मशी टेस्ट पसंद नहीं है। तो कहती है मुझे ज़िंदगी में कोई फुलनेस नहीं मिली, मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, मुझे मत बोलो धीरे खाने के लिए, मुझे नफरत है उस मशी फूड से जो मेरे माउथ में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। मे बी इफ़ आई हैड स्टक विद स्लो ईटिंग आई वुड हैव लॉस्ट सम गैसीनेस। शायद मेरी गैस कम हो जाती अगर मैं धीरे खाती, शायद मेरे चोकिंग रिस्क कम हो जाते, शायद मेरा वेट भी कम हो जाता। लेकिन माफ़ करना जनाब, इस सब के साथ साथ मेरा खुशी भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती। देर इज़ समथिंग टू स्पीड ईटिंग दैट इज़ प्लेन ओल्ड फन। कुछ तो है जल्दी खाने के बारे में जो मज़ेदार है, प्लेन ओल्ड फन है। अकिन मीन्स लाइक द रश ऑफ जूमिंग डाउन एन एम्प्टी हाईवे इन अ रेड स्पोर्ट्स कार। तो जिस तरीके से हाईवे पर रेड स्पोर्ट्स कार चलाने का अपना मज़ा है, जल्दी खाने का अपना मज़ा है। इफ़ आई हैव जस्ट एन आवर इश और नोइंग मी लेस, तो अगर आप मेरी बात करें मेरे पास 1 घंटा भी नहीं रहता है, लेकिन अगर मेरे पास घंटा भर है खाना खाने के लिए रोज़, मैं हर अपनी बाइट को ब्रिस्क और इनडेकोरसली इन्जॉय करूँगी। ब्रिस्क इज़ फास्ट एंड इनडेकोरस इज़ इम्प्रॉपर। मतलब आपको लगता होगा कि मैं इम्प्रॉपर तरीके से खाती हूँ, बट अपुन तो ऐसे ही खाएंगा, ठीक है। तो लिक्विड आइसक्रीम खाने की नौबत नहीं आई आज तक, शुक्र है। So how many of you are in team fast and how many of you are in team slow right now? Let me know. In the meanwhile we'll do some questions. ठीक है, एक एपिसोड ख़त्म करने के पहले खाना ख़त्म करने का थ्रिल बताओ। तुम लोगों ने तो अजीब ही दुनिया क्रिएट कर रखी है। अलग कंपटीशन चल रहा है लाइफ में कि एपिसोड से पहले खाना ख़त्म होना चाहिए। उल्टा नहीं कर सकते, खाने से पहले एपिसोड ख़त्म होना चाहिए, ये कर लो। Eating fast is bad for you. This is an article from The Atlantic by Catherine J. Wu. Let's do the questions. Question number 1, please. ये देखो आ गए, ना स्लो ना फास्ट। कभी तो एक साइड ले लिया करो, हमेशा डिप्लोमेसी अच्छी नहीं होती। हम नहीं खेल रहे। ओके खुशी है ना नीलम। मेरे को चाय के टाइम पे अगर आसपास के लोग फ़ोन चलाते हुए दिख जाए तो मैं चाय से ज़्यादा उबल जाती हूँ। मुझे लगता है चाय को तो एंजॉय कर लो, एक तो कम से कम फुर्सत का लम्हा निकालो दिन भर में 1 कप चाय पीने के लिए। मैंने तो सुना है लोग क्लास लेते लेते खाना खा लेते हैं, पता नहीं कैसे। बताओ ज्योति, तौबा। ओके हार्दिक। वाह, चाय के टाइम पे मेरी क्लास साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आंसर बताओ जल्दी।
I know, Garima. Okay. Which one of the following would the author most agree with? He would say that you glorifying slow eating is at best a half truth. ये सच नहीं है कि स्लो ईटिंग दुनिया की बेस्ट चीज़ है और यही करना चाहिए. इट्स अ हाफ ट्रूथ. रिसर्च की भारी कमी है. स्लो ईटिंग के हार्म के बारे में कभी किसी ने रिसर्च की नहीं है. फास्ट ईटिंग के हार्म के बारे में जो रिसर्च है वहाँ कॉज एंड इफेक्ट नहीं है. तो ये आधा अधूरा सच है. ऐसा कहना कम्प्लीटली सच नहीं है कि फास्ट ही खाना चाहिए या स्लो ही खाना चाहिए. Despite lack of research, slow eating is an extremely healthful thing to do. It's not extremely, it is a decently healthful thing to do, and there is no lack of research about it. It is because of the already prevalent mindful eating culture. Mindful eating culture prevalent नहीं है, busy distraction वाला culture prevalent है. तो ये factually correct है. Incorrect है, I'm sorry. It might be harmful to eat too slowly, maybe, but there is lack of research for it. So the author will not agree to it. The answer is a probable no. What about the second one? Which of the following best describes the stance of the author towards slow eating? Is he criticizing slow eating, or is he saying कि it can be okay but I don't want to take it up? ही इज़ मोर न्यूट्रल इन स्टांस. वो कहता है कि होंगे फ़ायदे बट हमको नहीं चाहिए, और होंगे नुकसान बट उस पर रिसर्च नहीं हुई है. तो वो बैलेंस करके चलता है और वो रीजंस देता है कि स्लो ईटिंग से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती और वज़न नहीं बढ़ता. फिर वो ये भी कहता है कि बहुत डेफिनेटिव और यूनिवर्सल रिसर्च नहीं है इससे रिलेटेड. तो वो खुद ही परेशान है कि कोई स्पेसिफिक रिसर्च, कोई ठोस कुछ मिलता नहीं है, तो वो न्यूट्रल रहता है. कॉन्डिसेंडिंग इज़ बी लिटलिंग, लुकिंग डाउन अपॉन इट. तो वैसे हंसी नहीं उड़ाता स्लो ईटर्स की. कैवलिंग इज़ कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन भी नहीं कर रहा है, वो क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा है, और वो एनकरेज तो बिल्कुल नहीं कर रहा है. ठीक है. वो कहता है हमें बल्कि तुम एनकरेज नहीं कर पाओगे, हम तो जल्दी ही खाएंगे. न्यूट्रल. लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, साइनेट दोष होता है व्हेन यू रिप्रेजेंट द होल बाय टॉकिंग अबाउट अ पार्ट, और वाइस वर्सा. यहाँ पे तो होल और पार्ट कुछ है ही नहीं. एनाफोरा होता है व्हेन यू बिगिन विद द सेम वर्ड. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड. आई रिपीट हो रहा है. गुड नाइट एंड गुड लक. मेरिज्म होता है जब आप अगेन पार्ट से होल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सर्चिंग हाई एंड लो. सब पढ़ा है तो सब भूल गए. आंसर इज मेटाफोर. अनलाइक थिंग्स में कंपैरिजन ड्रॉ करना. उसेन बोल्ट कहाँ भैया रनर है, आप कहाँ च्यूइंग की बात कर रहे हैं. आपने बोला आई एम दी उसेन बोल्ट ऑफ च्यूइंग. इट्स अ मेटाफोरिकल कंपैरिजन. बूझे. सो ईटिंग फास्ट इज बैड फॉर यू, राइट? By Catherine Wu from the Atlantic. I think it's a beautiful article. I hope you had fun. At least I did. The janta is pretty low because of the change in timings, I'm assuming. But anyway, those of you who couldn't do it live, doing recording, most welcome. Thank you for today. I shall see you in a few minutes. I think an hour maybe. In the 7:30 class with RC Genres. Till then, take good care of yourself and try to eat slow if possible. Okay.